So in this video lecture, we will come to know about the arthropoda and specifically the trilobites. It's very important for us to know more about the trilobite animal group because they have served us as very important and significant index fossils for the Permo-Triassic extinction boundaries. So let's get started. What are arthropoda? If we focus on the name, then it is made up of two different subwords. फर्स्ट इज आर्थ्रॉन, पहला आर्थ्रॉन है, इसका मतलब जॉइंट होता है, और सेकंड है पॉडस विच मींस लिम्स. इट इंक्लूड्स एन एनॉर्मस ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स कैरेक्टराइज्ड बाय बाइलैटरल सिमेट्री. उनकी बॉडी बाइलैटरली सिमेट्रिकल होती है. दैट मींस उनके बॉडी के बीच से अगर लॉन्गिट्यूडनली अगर उनके बॉडी के बीच से इफ वी पास plane, then the both the sides which are separated by the very plane that we pass will be very much similar or symmetrical. So it is also a segmented body. It is first of all a bilaterally symmetrical, then it's a segmented body. उनकी body पूरी intact नहीं होती, as we can all see यहाँ पे इस figure में. There are very many segments which are actually present on the body of this trilobite. This is actually what a trilobite actually looks like. Okay, so it's a segmented body, paired and jointed appendages used for locomotion and feeding. Now, those who don't know about appendages, I will tell that appendages are nothing but the limbs. Because there are many limbs in an arthropod, so that's why they are like more of an appendage, as we have fingers. So they are finger-like limbs. Okay. So commonly they possess chitinous exoskeleton, which is very important. They have chitin. Chitin is a chemical substance made up of calcium carbonate and organic matter. So chitin exoskeleton, which is molted periodically to allow the growth of animals. काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है. एक्सोस्केलेटन का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि एक्सो मतलब बाहर और स्केलेटन मतलब जैसे कि हमारे बॉडी को अगर कोई डिस्क्राइब करेगा देन दे विल टेल अस और डिस्क्राइब अस एज एंडोस्केलेटन बीइंग्स. लेकिन अगर ट्राइलोबाइट्स की बात करेंगे या फिर क्रैब्स की बात करो या फिर स्पाइडर्स की बात करो, विच आर ऑल कमिंग अंडर आर्थ्रोपोडा. So they all are exoskeletons. They all have exoskeletons. Specifically trilobites की अगर बात कर रहे हैं, arthropodas की बात कर रहे हैं, तो they have chitin exoskeletons, chitinous exoskeletons. This is very important. Please remember. So the animals are of triploblasticillomate grade. Triploblasty मतलब the layer of the body of which they are made of is three layered. ट्रिप्लोब्लास्ट मतलब थ्री लेयर्स. ब्लास्ट मतलब लेयर्स को बोल रहे हैं और ट्रिपल तो तीन को बोल रहे हैं. एंड सीलमेट मतलब उनके बॉडी में एक सीलम होता है, दैट इज अ हॉलो कैविटी जस्ट लाइक अस. हमारे बॉडी में भी माउथ या इसोफेगस से लेके पूरा स्टमक गट ये सब इट्स एक्चुअली हॉलो, जिसके अंदर हमारा जितना भी ऑर्गन्स वगैरह सब कुछ है. So we also have a coelom, but not specifically a coelom. Like it's more often used for the invertebrate grade of animals. Okay, so the animals are of triploblastic coelomate grade with metamerous body plan. Metamerous से हम लोग क्या समझते हैं? Let's understand first. Now, if we talk about metamerous body plan, then metamerism is known to human body as well. So it's like muscle bundles and nerves to be arranged segmentally for better coordination. If we see or look into this figure, then metamerism refers to the repetition of structural substances.
जैसे कि मान लो अगर तुम एक एनेलिडा या फिर एक वर्म को देख रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ यू लुक इनटू दिस वर्म, इट्स आल्सो लाइक एन आर्थ्रोपोडा। तो अगर तुम इस वर्म को देखोगे, देन उनके बहुत छोटे, इट्स नॉट, मतलब ये आर्थ्रोपोडा में पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है, बहुत सारे ट्रांजिशनल स्पीसीज भी रहते हैं। ओके, तो ये अगर उसकी बात करो तो इसमें इसके बॉडी स्ट्रक्चर को अगर तुम देखो, देन एक पतला सा रिंग टाइप का फीचर बार बार रिपीट होके ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया है। द रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स हैव गॉट adjacently attached to each other to form this entire structure of this worm. Similarly, अगर तुम इस एर्थ्रोपोडा को देखो, देन ये जो एक स्ट्रक्चर है, एक एलिप्टिकल एलिप्सॉइडल काइंड ऑफ एक जो बॉडी प्लान का पार्ट है, हिस्सा है, तो ये सेगमेंट बार बार रिपीट होके एडजेसेंटली या फिर लॉन्गिट्यूडनली हेड ऑन अटैचमेंट करके इस पूरे जानवर के बॉडी को बनाया है। सो दैट इज मेटामेरस बॉडी प्लान having well developed internal systems like the digestive, circulatory, reproductive and nervous system. So ये important क्यों है? क्योंकि हम लोग अगर इंटरनल सिस्टम्स के डेवलपमेंट के बारे में बात करें, डेवलपमेंट इन द सेंस कि जो पहले के प्रिमिटिव एनिमल्स थे, आर्थ्रोपोडा से जो पहले आए थे, उनके बॉडी में इतना एडवांस्ड या इतना स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स था नहीं। ये आर्थ्रोपोडा में देखा गया था कि डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव एंड नर्वस सिस्टम अलग अलग से डेवलप हुआ है। बहुत सारे और भी ग्रुप्स हैं जिनमें ये सारे सिस्टम्स डेवलप किए होंगे, लेकिन आर्थ्रोपोडा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन अदर। ठीक है, सो दे इंक्लूड अ वास्ट ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस मतलब क्रैब टाइप के, क्रस्ट जिनका एक्सोस्केलेटन क्रस्टी हो। अगर क्रैब्स कभी तुम लोग ट्राई किए हो या फिर तुम देखे हो कहीं डिस्कवरी चैनल या फिर कोई भी वैसा डिस्कवरी या फिर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स में दिखाते हैं, तो तुम अगर क्रैब्स के या फिर स्कॉर्पियंस के तुम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को देखोगे तो इट लुक्स लाइक अ क्रस्ट, so that's why they are known as crustaceans. And spiders, as well as some extinct groups like trilobites and eurypterids, giant paleozoic water scorpions. ठीक है, so arthropods resemble annelids. Arthropods resemble annelids. Annelids in worms को हम लोग बोल रहे हैं, these are actually annelids. This is annelida. Okay, so arthropods को बोल रहे हैं कि arthropods जो है रिजेंबल करते हैं एनालिड्स को। एनालिड्स इज अ सेपरेट वर्म क्लास। ओके, एनालिड्स का पूरा जो क्लासिफिकेशन है, इट्स एंटायरली बेस्ड ऑन वर्म्स एंड वर्मी क्रीचर्स। ओके, सो यहाँ बोल रहे हैं कि आर्थ्रोपोडा जो वो भी तो वर्म टाइप का ही लगता है। किस किस टर्म्स में, आइए देखते हैं। वो है कि उनके बॉडी सेगमेंटेड होते हैं विथ विच दे पॉसिबली शेयर अ कॉमन एंसेस्ट्री। इसका मतलब कि आर्थ्रोपॉड्स के एंसेस्टर शायद एनालिड्स रहे होंगे, जस्ट बिकॉज उनका बॉडी प्लान थोड़ा सा मैच कर रहा है। However, in the possession of hard skeleton and in terms of mechanism of movement, growth and feeding, arthropods have an overriding superiority over annelids. क्यों? क्योंकि उनके पैर बहुत सारे हैं। ठीक है, एनालिड्स के भी हैं, लेकिन एनालिड्स तो उतने डेवलप्ड और उतने स्टर्डी रोबस्ट नहीं है। अगर आप एनालिडा को सर्च करके देखोगे, हाँ, इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। अगर आप कभी भी कोई भी नए जानवर या नए स्पीसीज के बारे में किसी भी किताब में पढ़ते हो, एंड इफ there is no figure given to describe that particular animal, then please go to Google and try to look into the figures or the pictures of that particular animal so that you can, you know, imagine or visualize about the animal in a much better way. I would suggest कि आप लोग ये करें, और आगे भी मतलब जो भी हम लोग आप पढ़ेंगे तो आप प्लीज अगर खुद से अगर कुछ पढ़ रहे हो तो ये वाला प्रैक्टिस प्लीज करना, आपको बहुत हेल्प होगा। इंटरेस्ट भी ग्रो करता है इसमें एक्चुअली। सो मूविंग ऑन, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एनालिड्स का जो सेगमेंटेड बॉडी पार्ट है वो बोल देता है कि एनालिड्स जो थे वो आर्थ्रोपोड्स के एक्चुअली शायद एंसेस्टर्स रहे होंगे, लेकिन
आर्थ्रोपॉड्स का ग्रोथ एंड फीडिंग बोलो, लोकोमोशन बोलो, ये सब आर्थ्रोपॉड्स का ज्यादा अच्छा है। द ओनली रीजन बीइंग उनके बहुत सारे स्टडी रोबस्ट लिम्स हैं, वो उसी से खा भी रहे होंगे, उसी से चल फिर भी रहे होंगे, ठीक है। So in the structural complexity, adaptation almost to all sorts environments and development of remarkable social organization among some groups, the arthropods seem to represent their climax of evolutionary advancement. Most of them possess well-equipped defensive organs. They are also habituated to all sorts of animals, plants as their food. वो हर तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, हर तरह के सिचुएशंस में वो वेल अडेप्ट कर सकते हैं। इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट उन लोगों का बहुत अच्छा है, उनके डिफेंस ऑर्गन्स बहुत सारे हैं, वो बहुत तरह के खाना खा सकते हैं, वैरायटी ऑफ सिचुएशन में खुद को सरवाइव करने की क्षमता रखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स। अगर आपको कोई भी इस लेक्चर के दौरान डाउट हो, देन प्लीज राइट इट डाउन समवेयर and let me know in the group, or maybe text me personally. I will actually sit with you and get you clarified about the doubt. Okay, so there are many subdivisions. Obviously arthropods के अंदर बहुत सारे subdivisions हैं। अब हमको सब नहीं पढ़ने हैं, हमको ट्राइलोबाइटा उसमें ज्यादा फोकस करना है। सो लेट्स मूव ऑन कि क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स रिमेन अनसॉल्व्ड। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं जो क्लासिफाई करने में हम लोग को टफ हो रही है। सो मेनी डिफरेंट टैक्सोनॉमिक स्कीम्स have been erected for arthropods. Some consider the group as polyphyletic. Polyphyletic का मतलब है arose from multiple ancestors. उनके एंसेस्टर्स एक नहीं होंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार अरे हम लोग के जो पूर्वज थे वो कोई एक ही आदमी रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इंडियन सोसाइटीज में सुने होंगे, हिंदूज में, कि आप लोगों को पूजा वगैरह में गोत्र पूछा जाता है। तो गोत्र कुछ नहीं, हम लोग एंसेस्ट्रल ओरिजिन या रूट्स के बारे में पूछते हैं कि आपके एंसेस्टर कौन थे। तो कोई बोलता है विश्वामित्र, कोई वात्सव बोलता है, कोई कश्यप बोलता है, तो वो बोलते हैं कि हमारे एंसेस्टर का नाम ये था, ये था। लेकिन कोई ये भी बोल सकता है अगर कि हाँ हमारे जो एंसेस्टर थे वो 3 ऋषि मुनि थे, सो वी एक्चुअली हैड मल्टीपल एंसेस्टर्स, तो वो ग्रुप होगा भैया आर्थ्रोपॉड्स का। ठीक है, तो दैट एक्चुअली इज कॉल्ड पॉलीफाइलेटिक। ठीक है, पॉलीफाइलेटिक मतलब कि मल्टीपल एंसेस्टर्स। ये पूछा जाता है, ये मल्टीपल एंसेस्टर्स वाला कौन सा ग्रुप है भाई, तो आपको आर्थ्रोपॉड्स में टिक करना पड़ेगा या फिर उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर कोई एग्जाम में ये आया तो। अच्छा, Manton considered Arthropoda as a superphylum and subdivided it into a number of phyla, of which one is Trilobita. Trilobita एक सब फाइलम है। ठीक है, देखो मैंटन जो थे वो बोले आर्थ्रोपोडा एक सुपर फाइलम है, और वो सुपर फाइलम को तोड़ के फाइला बनाए। ठीक है, यहीं से थोड़ा टैक्सोनॉमी समझने का कोशिश करना। सुपर फाइलम को तोड़ेंगे तो सुपर फाइलम से टूट के फाइलम बनेगा, तो मैंटन के हिसाब से आर्थ्रोपोडा सुपर फाइलम हुआ और ट्राइलोबाइटा हो गया फाइला या फाइलम एक। ठीक है, लेकिन the author has followed the scheme proposed by Moore and others. Moore and others ने क्या बोला कि फाइलम जो था वो आर्थ्रोपॉड्स था। ठीक है, अगर आर्थ्रोपॉड फाइलम को तोड़ेंगे तो देयर विल बी सब फाइलम्स। जैसे एटम को तोड़ते हैं तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकलते हैं, उसी तरह फाइलम को तोड़ेंगे तो सब फाइलम्स मिलेंगे। तो उन्हीं सब फाइलम्स में से जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है ट्राइलोबाइटोमॉर्फा। तो ट्राइलोबाइटोमॉर्फा कैम्ब्रियन से लेके पर्मियन तक था। प्लीज नोट कि ये बिल्कुल स्टार्टिंग से पर्मियन तक गया, उसके बाद इट गॉट एक्सटिंक्ट, और ये इतना ज्यादा अमाउंट में पर्मियन ट्रायसिक बाउंड्री में मिलता है कि इसको एक बहुत ही अच्छा
और ये इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वाइड स्प्रेड था, क्योंकि ये बहुत अच्छे से अडेप्ट कर सकता था, बहुत तरह के सिचुएशंस में रह सकता था, बहुत तरह की चीजें खा के जिंदा रह सकता था। दैट्स व्हाई इट एक्चुअली वाज वेरी वेल वाइड स्प्रेड अलोंग द अर्थ, अराउंड द अर्थ। तो इसीलिए इसको ट्राइलोबाइट्स के नाम से इंडेक्स फॉसिल करार दिया गया। और इसका मॉर्फोलॉजी बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग था, आपको दिख के ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा दिस इज अ ट्राइलोबाइट। तो उसीलिए सो ट्राइलोबाइट्स एंड रिलेटेड फॉर्म्स को हम लोग ट्राइलोबाइटोमॉर्फा सबफाइलम में रखते हैं। सो दे आर मोस्टली एक्वेटिक मरीन्स, एक्सक्लूसिवली पैलेओजोइक, पैलेओजोइक जो एरा है उसमें एक्सक्लूसिवली वो रहते थे। उसके बाद मेसोजोइक, सिनोजोइक में उनका कोई नामो निशान नहीं था। अच्छा, देयर आर अदर्स एज वेल, लाइक आपका हो गया क्रस्टेशिया, ठीक है, क्रस्टेशिया हो गया आपका, शेलीसेराटा यहाँ पे दिया हुआ है, कैम्ब्रियन से रीसेंट अभी तक है। बाकी सारे देखिए आप लोग, वो इतने आर्थ्रोपॉड्स जो फाइलम है, तो वो इतने अच्छे से दे एक्चुअली हैड द एबिलिटी टू अडैप्ट सो वेल दैट दे हैव सर्वाइव्ड इवन टू दिस डे। हम लोग आज भी स्कॉर्पियंस को जिंदा देखते हैं, आज भी स्पाइडर्स अपने रूम्स में देखते हैं। सो दे आर ऑल अराउंड अस एंड लिव विद अस। They are very well adapted with the situation that we are currently facing. अगर आप आर्थ्रोपॉड्स के एनाटॉमी या आर्थ्रोपॉड्स का बनावट के बारे में अगर आप देखो, देन यहाँ अगर इस इमेज को देखोगे, किसी भी आप आर्थ्रोपॉड के ऊपर से, अगर आप बीच से, अगर आप मेरे माउस पॉइंटर को फॉलो कर रहे हो, देन अगर आप इसके बीच से एक लाइन ड्रॉ करते हो ऐसे, देन ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट पूरा सिमेट्रिकल होगा। सो दैट्स व्हाई दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। ऊपर से ये एक ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनके जो स्किन्स होंगे, इनके जो एक्सटर्नल लेयर्स हैं वो 3 लेयर्ड हैं। इनमें एक पर्टिकुलर सीलम हॉलो कैविटी है जिसके अंदर ऑर्गन्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम्स के ऑर्गन्स, ऐसे फलाना। अच्छा, तो ये सारे, एक और चीज है, इनके बॉडी प्लान को हम लोग मेटामेरस बोल सकते हैं, क्योंकि एक सब यूनिट का रिपीटेशन से ये पूरा बॉडी बना हुआ है। दैट्स व्हाई, सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो फोर्थ वाला जो है, दिस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इनमें कितने सारे सेगमेंट्स हैं आप देख सकते हो, इनमें कितने सारे छोटे छोटे पैर हैं वो भी आप देखो। सो दिस ओवर हियर इज अ ट्राइलोबाइट। ये जहां पे मैं अभी माउस पॉइंटर को एनसर्कल कर रहा हूँ बार बार, सो दैट इज वेयर द ट्राइलोबाइट इज लाइंग। अब देखो यहाँ पे उनके एक्सटर्नल शेल्स के बारे में बात किया गया है यहाँ पे। उसमें आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा कि देर आर एक्चुअली मल्टीपल लेयर्स। सो सबसे बाहर का जो लेयर है उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। सबसे बाहर का लेयर को वैक्सी लेयर बोलते हैं, वैक्सी लेयर, सॉरी, वैक्सी लेयर। अच्छा, उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पूरा जो बॉडी है दैट इज सेगमेंटेड मल्टीपल टाइम्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस एंटीना को देखोगे तो इस एंटीना के बीच में भी, इस एंटीना के अंदर भी आपको बहुत सारे छोटे 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 सेगमेंट्स मिलेंगे। तो उन सेगमेंट्स को अगर आप ठीक से यहाँ पे जूम इन करके देखो, तो दिस लेफ्ट साइड इज अ सेगमेंट एंड दिस राइट इज अ सेपरेट सेगमेंट, एंड दिस इज द आर्टिकुलेटिंग फरो। फरो का मतलब एक गड्ढे को बोला जाता है, और आर्टिकुलेट करना मतलब किसी चीज को जोड़ना, किसी चीज को ज्वाइन करना। सो दिस गड्ढा और दिस फरो इज एक्चुअली ज्वाइनिंग द टू सेगमेंट्स टुगेदर, तो दैट इज नोन एज द आर्टिकुलेटिंग फरो। अब पहला जो लेयर हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज द वैक्सी लेयर। इट्स एक्चुअली वैक्सी। उसके नीचे आपका रिजिड कैल्सिफाइड लेयर आता है, कैल्सिफाइड काइटिनस लेयर आता है, ठीक है, जो कि आपका उस पूरे शेल को या उस पूरे एक्सोस्केलेटन को मजबूती देता है। उसके नीचे फ्लेक्सिबल काइटिनस लेयर आता है जिससे वो आर्थ्रोपॉड अच्छे से मूव कर सके। और उसके बाद एपिडर्मिस आता है जो स्किन टाइप का होता है। हमारे ह्यूमंस के स्किन के बारे में अगर बात करें तो सबसे बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस होता है, लेकिन
यहाँ पे एपिडर्मिस के ऊपर फ्लेक्सिबल काइटिनस लेयर है एक, रिजिड कैल्सिफाइड लेयर है दो, और वैक्सी लेयर है तीन। तो देयर आर 3 लेयर्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लिम्स व्हिच आर एक्चुअली डिस्क्राइब्ड। हम लोग इसके बारे में बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप एक बात देख सकते हो कि अपेंडेज ऑफ आर्थ्रोपॉड्स कैसे दिखते हैं। अपेंडेज मतलब देखो ये उंगली के तरह दिख रहा है। ये पर्टिकुलरली स्विमर्स के लेग्स को दिखा रहा है, क्योंकि ये जो सीलिया वगैरह जो भी ये अपेंडेज से निकले हुए हैं, ये एक्चुअली स्विमिंग में या थ्रस्ट जनरेट करने के लिए यूज किए होंगे आर्थ्रोपॉड्स ने। ये वॉकिंग लेग है, इट्स लाइक आवर ओन लेग, कि अगर कोई चल रहा हो तो उसके उंगलियां निकली हुई होगी, वो ऐसे एक पोज में, एक पॉइज में चल रहा होगा। ये एक एंटीना टाइप का है, एक पतला सा, बिल्कुल पतला, जैसे आप ट्राइलोबाइट्स के भी सर पे देखोगे अगर, सो देयर हैड टू बी, देयर हैज एंटीना, देयर हैज पेयर ऑफ एंटीना एक्चुअली। फिर आपका बाईरामस अपेंडेज ऑफ ट्राइलोबाइट्स, ये देखो, ये एक बाईरामस अपेंडेज ऑफ ट्राइलोबाइट्स भी होता है। इसका मतलब कि दो तरह के अपेंडेज निकलते हैं यहाँ से, एक ये वाला मोटा वाला थोड़ा सा, और ये पतला वाला। ये पतला वाला जो है, इसमें देखो ये स्विमर के तरह ये ऐसे ऐसे सीलिया स्ट्राइएशंस टाइप के दिए हुए हैं, धागे टाइप के, थ्रेड्स टाइप के, जो कि इसको, एक तो ये वाला पैर आपका इसको चलने में हेल्प करता है, और ये वाला पैर स्विमर वाला इसको स्विम करने में हेल्प करता है, बिकॉज पर्टिकुलरली और मोस्ट कॉमनली दे आर एक्वेटिक एंड मरीन एनिमल्स। अब शीला ऑफ और शेला ऑफ लॉबस्टर्स, ये शेला जो है ये एक्चुअली पिंस्टर्स को बोलते हैं। अगर आप क्रैब्स को देखोगे तो उनके हाथ को अगर आप ठीक से देखोगे तो दे एक्ट एज एन अटैकिंग और अ डिफेंसिव मैकेनिज्म। वो अगर आपके उंगली या आपके हाथ को ऐसे पिंच कर ले, सो इट्स वेरी टफ कि आप अपना हाथ छुड़ा लें, इट्स वेरी डेंजरस। तो दैट इज हाउ अ क्रैब विल एस्केप फ्रॉम योर ग्रिप। वो आपको पिंच करके, आप काट के वो भाग जाएगा। दैट इज इट्स एस्केप मैकेनिज्म। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग उसके बॉडी प्लान के बारे में बात करते हैं। सो अगर आप ऊपर से देखोगे, अगर आप मैप व्यू में देखोगे, देन व्हाट हैपेंस इज कि एक बीच से एक लाइन, अगर ये पूरा ट्राइलोबाइट का एक शेप है, ठीक है, ये कैसा दिख रहा है, ये एलिप्स टाइप का दिख रहा है, मोटा मोटी, मतलब रफली अगर बोलो एलिप्स टाइप का दिख रहा है, ठीक है। उसके बीच में से एक डॉटेड सा लाइन गया है, वो डॉटेड सा लाइन ही आपका एक्सियल लोब बनाता है, और वही डॉटेड लाइन आपको ट्रेस ऑफ बाइलैटरल सिमेट्री प्लेन भी दिखा रहा है, ठीक है। बाइलैटरल मतलब, लैटरल मतलब साइड को बोलते हैं, और बाइलैटरल मतलब दोनों साइड। तो दोनों साइड उस ट्रेस के एकदम सिमेट्रिकल है, दैट इज व्हाट इट इज मीनिंग हियर, ठीक है। सो एक तो तुम्हारा ये वाला सेगमेंट हुआ, इस डॉटेड लाइन के, इस डॉटेड लाइन की वजह से, इस डॉटेड लाइन की वजह से आपका इधर पूरा लेफ्ट वाला आ गया, और ये राइट वाला पूरा आ गया, ये पूरा बायलैटरली सिमेट्रिकल हो गया ये। अच्छा, देयर आर टू साइड्स, फ्रंट एंड बैक। अब हम लोग इन जानवरों के केस में फ्रंट बैक नहीं बोल के एंटीरियर पोस्टीरियर बोलते हैं, ठीक है। जो अगर जो मुंह है, वो उस तरफ को हम लोग ह्यूमन टर्म्स में फ्रंट बोलते हैं, और अगर मुंह के पीछे ऑपोजिट साइड को बोलेंगे तो बैक बोलते हैं। तो इस इन्वर्टिब्रेट नोमेनक्लेचर में हम लोग फ्रंट को एंटीरियर बोलते हैं और बैक को पोस्टीरियर बोलते हैं। तो यहाँ पे माना गया है कि ये ऊपर वाला जो है, या फिर मैप व्यू में जो सामने की तरफ है, दैट इज एंटीरियर, और यहाँ पे पोस्टीरियर। एक तो आपका हो गया ये एक्सियल लोब। ये लोब जो है ना, ये आपको देखना पड़ेगा कैसा दिखता है, लेट मी शो यू। आपको अगर ये चीज दिख रहा हो,
अगर आपको ये बीच का पोर्शन दिख रहा है, सो ये एक लोब टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, एक कन्वेक्स अपवर्ड्स, एक फूला हुआ इन्फ्लेटेड एक टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है. सो दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट along the axis of the entire body. अगर आप ठीक से देखो तो यहाँ एकदम बीच से आपका ये ट्रेस ऑफ बायलैटरल सिमेट्री प्लेन निकलेगा, और वही आपका इस पूरे एनिमल का एक्सिस भी होगा, द एक्सिस ऑफ दिस बॉडी प्लान और दिस पर्टिकुलर एनिमल. तो इसीलिए इस लोब को एक्सियल लोब भी बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, देयर आर 3 सब पार्ट्स. अगर आप ट्रांसवर्सली 3 या 2 लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो ट्रांसवर्सली, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज कि पहला सबसे फ्रंट में ये आपका एक सेक्शन रहा, उसके बाद एक बीच में रहा, और इसके बाद एक बैच पीछे में रहा. ठीक है. तो आप इस चीज को एक बहुत ही सिंपल कोरिलेशन से आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि कोई एक गाड़ी ले लो. हम्म किसी भी गाड़ी में या किसी भी कार में एक ड्राइवर का सेक्शन होता है फ्रंट में, एक भाई डिक्की होती है, और एक बीच का सेक्शन होता है जहाँ पे लोग बैठते हैं, और एक डिक्की में सारे लोग सामान वगैरह फिट करते हैं, और सबसे सामने ड्राइवर बैठ के अपना चला रहा होता है. सो ये जो सबसे सामने वाला जो पोर्शन, जो ड्राइवर वाला पोर्शन है, उस ड्राइवर वाले पोर्शन को सेफलॉन बोलते हैं. ठीक है. दिस एंटायर बॉडी पार्ट, दिस एंटायर बॉडी सेगमेंट इज द सेफलॉन. सेफलॉन इज द हेड पार्ट. उसके बाद आता है भैया बॉडी, जो बीच में लोग जो बैठ के ट्रेवल कर रहे हैं उनको थोरैक्स बोलते हैं. दैट बॉडी पार्ट इज नोन एज द थोरैक्स पार्ट. ठीक है. और सबसे पीछे जो डिक्की है उसको पिजीडियम बोलते हैं या पाइलिडियम बोलते हैं, डिपेंड्स आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं. ठीक है. तो ये आपका हो गया हेड, बॉडी एंड टेल. अब अगर आप एक चीज देखो तो यहाँ पे 2 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस ऐसे ड्रॉ किए हुए हैं. तो सबसे बीच में जो सेक्शन निकल के आ रहा है, ये वाला छोटा सा जो एलिप्स निकल रहा है, सो दैट इज द एक्सियल एलिप्स और द एक्सियल लोब. दैट इज द एक्सियल लोब. यहाँ पे एरो जो है पॉइंट कर रहा है इस पूरे एक्सियल लोब को, ना कि सिर्फ ये इस लाइन को. ठीक है. ये जो पर्टिकुलर लाइन या ट्रेस आपको दिख रहा है, दैट इज द ट्रेस ऑफ बायलैटरल सिमेट्री प्लेन. लेकिन ये पूरा जो बीच का एलिप्स है, ये एलिप्सॉइड है, वो एक्सियल लोब को दर्शा रहा है, बता रहा है. अच्छा, वो तो हो गया एक्सियल लोब. एक्सियल लोब के दोनों पास या दोनों बगल आपका क्या आ जाता है, लैटरल या प्लूरल लोब्स. प्लूरल लोब्स, इसको कैसे याद रखेंगे, एक सिंपल ट्रिक है कि सिंगुलर प्लूरल होता है, तो यहाँ पे एक से ज्यादा लोब्स हैं जो कि एक्सियल लोब के पास में है, बाजू में है, तो उनको प्लूरल लोब्स बोलते हैं. सिंगुलर का उल्टा प्लूरल, मल्टीपल लोब्स या प्लूरल लोब्स. या साइड में है तो लैटरल लोब्स. लैटरल मतलब मैंने पहले बोला था कि उसको साइड बोलते हैं, है ना. अच्छा, अब जो लाइंस जो हमने बताई कि ड्रॉ करी हुई है, जो कि इन तीनों सेक्शन को अलग कर रही हैं, दोज आर एक्चुअली एक्सियल फरोज. यहाँ पे एक्सियल फरोज एक्सिस के अलोंग ड्रॉ किए हुए, या एक्सिस के अलोंग आपके ओरिएंटेड गड्ढों को बोला जा रहा है, जिनसे आपके प्लूरल लोब्स और एक्सियल लोब्स अलग हो पा रहे हैं. फॉर एग्जांपल इस फिगर में तो उतना अच्छा से आप लोग समझ नहीं पाओगे. आई विल शो यू ग्रेटर गुड फोटो. ठीक है, एक सेकेंड, आप लोग ऐसे ही पढ़ा करो तब आपको समझ में आएगा. यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस फिगर में अगर आप देखो, तो यहाँ पे ये एक आपका एक्सियल फरो है, ये एक आपका एक्सियल फरो है, ये बीच वाला जो पोर्शन है दिस इज द एक्सियल लोब, और ये जो दोनों साइड में जो हमारे लोब्स दिख रहे हैं, दीज आर द लैटरल और द प्लूरल लोब्स. ठीक है. और यहाँ पे जो जो हेड पार्ट है, दिस हेड इज एक्चुअली द सेफलॉन. ये बीच का जो पोर्शन है यहाँ तक, दिस entirely is the thorax part, and एकदम से नीचे जो एकदम पूंछ के तरह दिख रहा है, that actually is the pygidium or the tail part. I hope ये anatomy आपको समझ में आई होगी, बहुत important है.
ठीक है। अगर आप एक सिंपल बॉडी प्लान देख रहे हो तो उसमें ये सारी चीजें आपको दिखती हैं। सबसे पहले आपको ट्राइलोबाइट की आंख दिखेगी। ट्राइलोबाइट आई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके सामने फ्रंट के तरफ एक एंटीरियो लैटरल बॉर्डर है। एंटीरियो मतलब सामने की तरफ, लैटरल मतलब साइड की तरफ। सामने साइड में मतलब नॉर्थ ईस्ट, मतलब एक साइड वेज डायगनली आपको ये जो दिख रही है, दिस इज द बॉर्डर, एंटीरियो लैटरल बॉर्डर। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे मेरा पॉइंटर आप फॉलो करना। ये आई से जो लेके एकदम जो बीच में एक्सियल लोब तक जो पहुंच रहा है, दिस एक्चुअली इज नोन एज द फेशियल सूचर। अब ये फेशियल सूचर क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? फेशियल सूचर मतलब होता है कि फेस पे कितने सारे जॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जॉइंट्स एक्चुअली आपका बहुत तरह का होता है, जो आपको डिफरेंट ट्राइलोबाइट स्पीसीज में डिफरेंशिएट करने में फैसिलिटेट करता है या हेल्प करता है। So that's why facial suture is very top. It's a topic which is very much talked about in the world of trilobites. अलग अलग ट्राइलोबाइट्स के अलग अलग टाइप के थोड़ा थोड़ा सूचर्स होते हैं, तो हम लोग भी उन चीजों के बारे में आगे पढ़ेंगे, विल टॉक अबाउट इट। ठीक है। तो अब फेशियल सूचर और आपका एंटीरियो लैटरल बॉर्डर के बीच का जो हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे भाई? उसको चीक बोलेंगे। जैसे हम लोग के चीक्स होते हैं, हम लोग के आंख होते हैं, तो आंख के जस्ट नीचे हमारा चीक अब आ जाता है, गाल आ जाता है। तो उसी लिए हम लोग इसको भी उसी तरह से नोमेनक्लेचर दिए है कि जैसे ये एंटीरियो लैटरल बॉर्डर जो है ना, इट्स लाइक आवर जॉ लाइन, ठीक है। और आपका यहाँ पे एक आंख दिख रहा है और यहाँ पे एंटीरियो लैटरल बॉर्डर या जॉ लाइन दिख रहा है। अब हमारा भी आंख और जॉ लाइन के बीच में चीक आता है, यहाँ पे भी आई और एंटीरियो लैटरल बॉर्डर के बीच में चीक आ रहा है। उसके बाद भाई ये जो बीच का जो सेफलॉन का जो पोर्शन है, ध्यान से सुनना, बीच का सेफलॉन का पोर्शन, इसको ग्लैबेला बोलते हैं। इट्स लाइक द ब्रेन होल्डिंग पार्ट, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, इस राइट फिगर में देखो, बीच का जो पोर्शन है जो कि आपका सेफलॉन का हिस्सा है, दैट इज एक्चुअली नोन एज द ग्लैबेला। ओके, दैट इज द ब्रेन होल्डिंग पार्ट। ओके, सो इट्स लाइक द क्रैनियम, ठीक है। क्रैनियम, अगर आप ह्यूमन बॉडीज पढ़ते हो या पढ़े हो तो वहां पे आपको जानने को मिलता है कि ब्रेन बॉक्स को बोलते हैं क्रैनियम, जो ब्रेन को होल्ड करता है, स्केलेटन का पार्ट होता है ना। और वो हमारे एकदम फ्रंट पे रहता है या सामने में रहता है। अब थोरैक्स की बात करें तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे सेगमेंट्स दिख रहे हैं, अगर ये एक्सियल पार्ट में दिख रहा है तो इसको एक्सियल सेगमेंट्स बोलते हैं। और अगर ये लैटरल पार्ट्स में या लैटरल लोब्स में दिख रहा है तो इनको लैटरल सेगमेंट्स बोलेंगे। और यहाँ पे ये सबसे नीचे क्या दिख रहा है कि पाइजिडियम विद इट्स ओन सेगमेंट्स, दीज आर प्लूरल सेगमेंट्स एंड दीज आर एक्सियल सेगमेंट्स। उसी तरह यहाँ पे अगर थोड़ा सा एनाटॉमी चेंज होता है फॉर द चेंजिंग एनवायरनमेंट्स, तो यहाँ पे एक चीज डेवलप करेगा, दैट इज अ बॉर्डर। यहाँ पे मार्जिनल फरो एक चीज डेवलप करता है। लेट मी शो यू अ मार्जिनल फरो। हाँ, अगर आप इसी फिगर में देखोगे तो यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे मार्जिन, जस्ट इस ट्राइलोबाइट का जो हेड है, इसके मार्जिन के पास देर इज अ फरो दैट हैज डेवलप्ड, है ना। इसको देखो, यहाँ एकदम से यहाँ पे एक मार्जिनल फरो डेवलप करता है, ठीक है, जो कि उसको डिफेंस में हेल्प करेगा। ओके, उसको जो डिफेंस में हेल्प करता है, और ये डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में डिफरेंटली डेवलप करेगा। दैट इज ऑल्सो डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी फॉर अस पैलेंटोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई वेदर it has got the trilobite sample or the species has got जैसे कि इस फोटो में आपका मार्जिनल फरो नहीं है। उसी जगह अगर आप पहले इस फोटो में अगर आप देखोगे, इस फोटो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक मार्जिनल फ्लो डेवलप किया है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं एटलीस्ट कि ये वाला जो सैंपल है वो वाला सैंपल है, दोनों का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा अलग था, है ना। अच्छा,
तो ये हो गया आपका मार्जिनल फरो का सिग्निफिकेंस। यहाँ पे आईज आ गई, ग्लैबेला आ गया, चीक आ गया, ठीक है। ये एक्सियल थोरैक्स आ गया, ये प्लूरा आ गया, प्लूरा आ गया नीचे भी, ये एक्सियल पाइजिडियम आ गया। यहाँ पे जैसे एक्सियल सेफलॉन भी बोल सकते हैं, एक्सियल सेफलॉन को हम लोग ग्लैबेला बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो एक्सियल पाइजिडियम हो गया। एक्सियल पाइजिडियम का अलग से कोई नाम नहीं है, बस एक्सियल सेफलॉन का अलग से नाम है, दैट इज ग्लैबेला, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा बेसिक मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग इसके बाद जो कुछ पढ़ेंगे वो हमारा फंक्शनल मॉर्फोलॉजी में आएगा, और हम लोग ट्राइलोबाइट्स के आईज के बारे में, उनके सूचर्स के बारे में, उनके लाइफ स्टाइल या उनके डेली एक्टिविटीज के बारे में सब कुछ जानेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।